السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان ماں کی محبت۔ ایک عورت کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جوان بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ زندگی کے اس حصے تک نہ پہنچیں جب خود ماں بن گئی، تب محسوس ہوگا کہ ماں کی محبت کیا چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ودیعت کر دی کیونکہ اس نے پرورش کرنی تھی، اس نے بچوں کو پالنا تھا۔ ماں کے دل میں ایسی محبت ہے کہ بچوں کا ہر معاملے میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے۔ ایک بچے جس کی شادی کو چند سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اپنے گھر میں غمگین بیٹھی مصلی پہ رو رہی ہوگی، دعائیں مانگے گی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی اس بچے سے پوچھے کہ تمہیں اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اچھی تعلیم عطا کی، محبت کرنے والا قابل عطا کیا، مال و دولت کے ڈھیر عطا کیے، دنیا کی عزتیں عطا کی، ہر نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، کیوں پریشان ہو؟ وہ جواب دے گی کہ ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، میں اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں۔ یہ حج پہ جائے گی تو طواف کعبہ کے بعد اولاد کی دعائیں کرے گی، مقام ابراہیم پہ سجدہ کرے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، غلاف کعبہ کو پکڑے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، تہجد کی نماز پڑھے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا نصیب ہوا تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کسی نیک بزرگ کی محفل میں جانے کا شرف حاصل ہوا تو اولاد کی دعائیں کروائے گی۔ آخر یہ کیسی نعمت ہے جس کی وجہ سے مغموم ہے، پریشان ہے، حالانکہ بچی جانتی ہے کہ جب میں ماں بننے لگوں گی تو 9 مہینے کا عرصہ میری بیماری میں گزرے گا، نہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہے گا، جو کھاؤں گی کئی مرتبہ وہ بھی باہر نکل آئے گا، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے گی، بیماروں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، مگر اس کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس سب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو عورت کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بچہ سیزرین بھی ہو سکتا ہے، والدہ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ جب بچہ ہو جائے گا تو 2 سال کے لیے مجھے راتوں کو سونے کا موقع نہیں ملے گا، میں سارا دن بچے کے کام کروں گی اور رات کو بھی بچے کی خاطر جاگوں گی۔ اس کو اپنی سلیپ لیس نائٹ کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بچے کی خدمت چند گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے کرنی پڑے گی، مگر اس کی وہ خادمہ بننے کے لیے تیار ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی، ڈاکٹروں کو چیک اپ کروائے گی، کسی سے پڑھنے کا عمل لے گی، رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ کر اللہ سے مانگے گی۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کی محبت ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو بیچاری بھول جاتی ہے، ہر وقت بچے کی فکر لگی رہتی ہے، کبھی اسے پلا رہی ہے، کبھی سلا رہی ہے، کبھی پہنا رہی ہے، کبھی پہلا رہی ہے، ہر وقت اس کی سوچیں بچے کے بارے میں، ہر وقت اس کی فکر بچے کے بارے میں۔ بچے کو خوش دیکھ کر یہ خوش ہو جاتی ہے اور بچے کو دکھی دیکھ کر یہ غم زدہ ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد محبتوں کے پیمانے بدل گئے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بچے کو پیار نہ کرے تو یہ اسے اپنا نہیں غیر سمجھے گی، اور اگر کوئی غیر عورت اس بچے سے محبت کا اظہار کرے گی تو یہ اسے اپنا سمجھے گی۔ بچے کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو سکتی، کبھی اپنی بہن کے گھر اپنے بچے کو بھیج دیا تو تھوڑی دیر کے بعد فون کرتی ہے کہ جلدی پہنچا دیں، اور جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں میری گود میں آ گئیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بچے کی محبت ہے جو اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ڈال دی۔ یہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے پھر خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ سارا دن اس نے کام کیا، تھکی ہوئی تھی، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، جیسے ہی لیٹی بچے نے رونا شروع کر دیا، یہ بچے کو اٹھا کے بیٹھ جائے گی، اپنے آرام کو قربان کر دے گی۔ اگر بچے کو اس کی گود میں نیند آ گئی تو وہیں بیٹھی رہے گی، حرکت بھی نہیں کرے گی، دل میں یہ آئے گا میرے حرکت سے بچہ جاگ نہ جائے۔ یہ خود بھی تھکی ہوئی تھی، جاگ رہی ہے، لیکن بچے
बच्चे का जागना उसको गवारा नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की मोहब्बत माँ के दिल में डाल दी। चुनांचे हमने देखा जब बच्चा जवान हो गया, काम करने बाहर निकला, रात को आने में देर हो गई, घर के सब लोग अपने वक्त पे खाना खा लेंगे, एक माँ होगी जो इंतजार में रहेगी। बेटी भी कहती है अम्मी खाना खा लो, मियाँ भी कहता है कि खाना खा लो, ये कहेगी नहीं मैं बाद में खाऊंगी। उसके दिल में ये होता है मालूम नहीं मेरे बेटे को खाना मिला होगा या नहीं, जब मैं उसे देखूंगी फिर वो भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी। सारा घर के लोग सो जाते हैं, ये माँ बिस्तर पे करवटें बदल रही होती है, कभी दरवाजे को देखती है, कभी फोन की घंटी सुनने लगती है। मेरे बच्चे का कहीं से पैगाम आए, दिल घबराता है, उठ के मुसल्ले पे बैठ जाती है, दुपट्टा आंसुओं से तर कर लेती है, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, खैरियत से वापस आ जाए। आखिर ये क्या है? ये माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत है। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि दुनिया के सब लोग नेकियों से मोहब्बत करते, नेकों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो बद औलाद से भी मोहब्बत करती है। खाविन नाराज हो रहा है, तुम्हारे प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया, ये कहेगी ये तो मुकद्दर था उनका, मैं क्या करूँ, आखिर मेरा तो बच्चा है। बाप गुस्से में कह जाए बच्चे को कि घर से चले जाओ, माँ कभी अपनी जबान से कह नहीं सकती कि नेक औलाद से भी मोहब्बत करती है और बुरी औलाद से भी मोहब्बत करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल को ममता से भी भर दिया। ये वो नेमत है जो बाजार से नहीं मिलती। ममता वो नेमत है जिसकी कीमत कोई और अदा नहीं कर सकता, और उसको माँ के सिवा कोई दूसरा समझ भी नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत में माँ का बहुत मकाम बना दिया। कहते हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा होती है जो मोहब्बत की नज़र अपनी वालिदा के चेहरे पर डालता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। सहाबा ने पूछा जो बार बार मोहब्बत और क़ीरत से देखे, फरमाया जन्नती, फरमाया जितनी बार देखेगा उतनी बार हज या उम्रे का सवाब पाएगा। इसलिए हमारे मशाइख ने फरमाया कि माँ के कदमों को बोसा देना काबे की दहलीज को बोसा देने के मुतरादिफ है, इसलिए कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। खुशनसीब है वो इंसान जिसने माँ की दुआएं ली, जिसने माँ की खिदमत कर ली, माँ के दिल को राजी कर लिया। एक वली की वालिदा फौत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम फरमाया, ए मेरे प्यारे, जिसकी दुआएं तेरी हिफाजत करती थी अब वो दुनिया से रुखसत हो गई, अब जरा संभल के जिंदगी गुजारना। माँ की दुआएं औलाद के गिर्द पहरा देती हैं। औलाद को नहीं पता होता माँ कब कब कहाँ बैठी दुआएं दे रही होती है। ये बुढ़ापे की वजह से हड्डियों का ढांचा बन जाए फिर भी औलाद के लिए रहमत शफक़त का साया होती है, हमेशा औलाद का अच्छा सोचती है, बल्कि औलाद की तरफ से तकालीफ भी पहुँचे तो जल्दी माफ़ कर देती है। दुनिया में माँ से ज़्यादा जल्द माफ़ करने वाला कोई नहीं, अपने बच्चे की तकलीफ देख नहीं सकती, इसलिए माँ का हक 3 बार बताया, चौथी बार बाप का हक भी बताया। इसलिए कि माँ बच्चे की पैदाइश में मशक्क़त उठाती है और बाप का हिस्सा शहद के साथ होता है। माँ का नुत्फ़ा रहम के ज़्यादा करीब होता है कि सीने से आता है, बाप का नुत्फ़ा पुष्ट से दूर से आता है। इसलिए माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने ज़्यादा डाली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 औरतें थीं, छोटे छोटे एक जैसे बच्चे उठाए हुए थी, जंगल में से जा रही थी। एक भेड़िया आया और उसने उसमें से एक औरत के बच्चे को छीन लिया और भाग गया। थोड़ी देर के बाद उस औरत के दिल में यह ख्याल आया कि दूसरी औरत का बच्चा मैं ले लूँ। उसने झगड़ना शुरू कर दिया। मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। दोनों अपना हक जतलाती हैं। वो कहती है कि उसके बच्चे को भेड़िया ले गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया छुरी लाओ, मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े करता हूँ और दोनों में आधा आधा तकसीम कर देता हूँ। उनमें से जब एक ने फैसला सुना तो वो कहने लगी ठीक है, लेकिन जब दूसरे ने सुना तो रोना शुरू कर दिया, कहने लगी मेरे बच्चे के टुकड़े ना करो, उस दूसरी औरत को ही दे दो, यही पालेगी, कम अज कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। आप समझ गए कि ये बच्चा इस औरत का है, आपने उसे अता फरमा दिया। ये भी हकीकत है कि माँ कभी बच्चे से खुद तो नाराज हो जाती है लेकिन दूसरों को नाराज नहीं होने देती। इसलिए अगर बाप डांट डपट करे तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि क्यों इसको इतना डांटते हैं, ये उस ममता की वजह से है। खुद झिड़की दे लेगी मगर किसी की झिड़की बर्दाश्त नहीं होती। ये असल में मोहब्बत है और उसकी दलील कुरान मजीद से मिलती है। जितनी
सारी मखलूक के अंदर मोहब्बतें हैं, इंसानों को, हैवान को, चरिंदों को, परिंदों को, मछलियों को, सारी मखलूक के अंदर मोहब्बतें हैं। इंसानों को सारी मखलूक के अंदर मोहब्बतें हैं, इंसानों को, हैवानों को, चरिंदों को, परिंदों को, मछलियों को, कीड़ों मकोड़ों को, सबकी मोहब्बतों को जमा किया जाए तो ये सब मिलकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के 70वें हिस्से का नामुल बदल नहीं कर सकते। इसलिए कुरान मजीद से उसकी गवाही मिलती है। सुनिए और ज़रा दिल के कानों से सुनिए। कुरान अज़ीम शान गवाही दे रहा है। ग़ज़वा उहद में सहाबा से एक भूल हुई। चंद सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर खड़ा किया था। जब फतह हुई, काफिर पसपा हुए, वो समझे ड्यूटी मुकम्मल हो गई, गलत फहमी की बिना पर नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मौका पाकर पीछे से हमला किया। मुसलमान दोनों तरफ कफ़ार के दरमियान आ गए। कई सहाबा शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पत्थर लगा। दंदान मुबारक शहीद हुए। आपके जिस्म से खून निकल आया। आप उस बात पर बहुत गमगीन थे। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा शहीद हुए थे और बहुत सारी अक्सरियत तो ज़ख्मी थी। सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए थे। जब नबी अलैहिस्सलाम के गमगसार थे। चुनांचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो आप खामोश थे, गमज़दा थे, सहाबा से कलाम नहीं कर रहे थे। अब ज़रा देखिए कुरान मजीद को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराज़गी पसंद ना आई कि ये अपने सहाबा से क्यों नाराज़ हैं। जैसे माँ को बच्चों से किसी की नाराज़गी पसंद नहीं आती। अल्लाह ताला ने सिफारिश फरमा दी, फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, ए मेरे महबूब उन्हें माफ़ फरमा दीजिए, उनके लिए आप इस्तग़फ़ार कीजिए, मैं खुदा भी उन्हें माफ़ कर दूँगा। वशाविरुहुम फ़िल अम्र, और उन्हें मशवरे में शामिल कर लीजिए। तो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन की सिफारिश फरमाते हैं। अल्लाह ताला से ये बर्दाश्त न हुआ कि मेरे महबूब सहाबा से क्यों नाराज़ हैं। एक मौके पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अपने एक रिश्तेदार से नाराज़ हुए। उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बहतान के बारे में सच समझ लिया था। गलत फहमी दिल में आ गई थी। सिद्दीक़ अकबर ने दिल में सोचा, मैं हर महीने उनको कुछ पैसे देता हूँ इमदाद के तौर पर, ना मैं वो ताल्लुक़ रखूँगा और ना इमदाद भेजूँगा। रब करीम ने बहतान लगाने वाले मुनाफिकीन को डांट पिलाई। जो सहाबा उनकी बातों में आ गए थे उनको भी सरंजिश फरमाया, खुद डांट डपट कर ली, मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाराज़ ना होने दिया। फरमाया उनको चाहिए कि उनको माफ़ कर दें, उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखें। या ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दें। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये आयत सुनी तो आपने दिल से भी माफ़ कर दिया और आइंदा उनको दो गुना माहाना देने का इरादा फरमा लिया। तो सोचने की बात है कि जिस तरह माँ खुद डांट डपट कर लेती है, किसी को औलाद को डांटने का मौका नहीं देती, यूँ लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ईमान वालों के साथ ऐसी मोहब्बत है। खुद नाराज़ हो लिया, डांट लिया, लेकिन अपने महबूब की नाराज़गी पसंद ना आई। उसको फरमा दिया कि आप उनको माफ़ फरमा दीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नाराज़गी पसंद ना आई। उनको भी समझा दिया कि माफ़ कर दो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें माफ़ फरमा दे। तो यहाँ नुक्ता समझने का ये है कि जो परवरदिगार दूसरों की नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं करता, वो अगर खुद किसी बात पर नाराज़ हो तो उसको कैसे बर्दाश्त करेगा कि वो नाराज़ रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये चाहत है, मेरे बंदे गुनाहों से सच्ची तौबा करें, मेरे दर पर आकर माफ़ी मांगे और मैं उनको माफ़ कर दूँ। बच्चा अपनी माँ से जब भी माफ़ी मांगता है, माँ जल्दी माफ़ कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उससे भी ज़्यादा मोमिनीन पर मेहरबान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना बहुत आसान है। और बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के महीने में जो रहमतों का महीना है, परवरदिगार की रहमत और मग़फ़िरतों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अब तो मग़फ़िरत हासिल करने के लिए बहाने की ज़रूरत है। ये हमारे खुशनसीबी है कि हम आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक काफ़िले को देखा। एक माँ परेशान थी।
اس کو अपने सर पर दुपट्टे का होश भी नहीं था। उसका बेटा गुम हो गया था। वो भागी फिर रही थी, लोगों से पूछती थी, किसी ने मेरे बेटे को देखा हो, मुझे बता दे। ये मंजर भी अजीब होता है कि माँ का जिगर का गोशा उससे जुदा हो, उस पर क्या गुजरती है। उसका दिल मछली की तरह तड़प रहा होता है। अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि इस पर क्या मुसीबत गुजरती है। उसकी आंखें तलाश कर रही होती हैं, मेरा बेटा मुझे नजर आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ये माँ अपने बेटे की वजह से इतनी परेशान है, अगर उसे बेटा मिल जाए तो क्या ये उसको आग में डाल देगी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं डालेगी, इतनी मोहब्बत है उसको बच्चे से, ये तो गवारा नहीं करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह माँ अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं करती, इसी तरह अल्लाह इज्जत भी मोमिन बंदे को आग में डालना गवारा नहीं करती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगनी तो बहुत आसान है, इसलिए कि उनकी मोहब्बत तो सारी दुनिया की माँओं से 70 गुना ज़्यादा है। हदीस पाक में आता है, एक नौजवान सहाबी थे, अपनी माँ को नाराज़ कर रखा था, कोई तकलीफ पहुँचाई थी, नाराज़ होकर धक्का दिया और माँ को चोट आ गई, तो वो दिल से नाराज़ थी। अब उसकी मौत का वक्त आया, सुकरात मौत बारी है मगर मौत नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की गई, इरशाद फरमाया कि मैं खुद चलता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सूरत हाल मालूम की, आपने वालिदा को सिफारिश फरमाई कि अपने बेटे को माफ़ कर दे। वो कहने लगी, मैं हरगिज़ नहीं माफ़ करूँगी, उसने मुझे इतना दुख दिया, इतना सताया कि मैं उसे माफ़ कर ही नहीं सकती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये अपनी बात पर डटी हुई है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो। जब उसने ये सुना तो वो पूछने लगी कि लकड़ियाँ क्यों मंगवा रहे हैं। आपने फरमाया, आग जलाएंगे और तुम्हारे बेटे को उस आग में डालेंगे। तो उससे राजी जो नहीं हो रही, उसने जैसे ही सुना दिल मोम हो गया, कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे को आग में न डालिए, मैंने अपने बेटे की गलतियों को माफ़ कर दिया। तो जब माँ नहीं चाहती कि बेटा आग में जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे चाहेंगे कि उसके मोमिन बंदे जहन्नम में जाएं। माँ ने जितनी भी तकलीफ उठाई हो, बिलाखिर माँ होती है, मोहब्बत की हाथों मजबूर होती है। आपकी खिदमत में एक सच्चा वाक़या पेश कर दूँ। एक नौजवान की शादी हुई, उसको बीवी से बहुत प्यार था और बीवी की तबीयत कामचोर थी। वो उस नौजवान के माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि खाविन तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो अपने खाविन से नाराज़ रहने लगी। जवानी थी, खाविन से भी बर्दाश्त न हुआ। उसने पूछा, क्या बात है। कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूँगी जब तुम यहाँ से मुझे मेरे घर वापस ले जाओ और मेरे साथ वहीं पर तुम भी मेरे साथ रहो। मैं आपके साथ तो खुश रह सकती हूँ, इन बूढ़ों की खिदमत करना पड़ती है, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब वो नौजवान ऐसा था कि उसने बीवी की बात को मान लिया। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बिलाखिर दूसरे शहर में जाकर घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, मगर बच्चे के कान में जूं भी न रेंगी। वो अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में ऐश और आराम के साथ जिंदगी गुजारता रहा। बिलाखिर उसको सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। जो बच्ची थी ये वहाँ चला गया, पैसे ज़्यादा आ गए, बीवी को शानदार मकान बना कर दे दिया, सारा खर्चा बीवी के लिए भेजता। अपने माँ बाप उसने कोई राब्ता न रखा। बीवी कहती थी, अगर उनसे राब्ता करोगे तो मैं राब्ता तोड़ दूँगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ये करतूत किया कि अपने बूढ़े माँ बाप को उसने नेगलेक्ट कर दिया। कई साल गुजर गए। एक मर्तबा ये तवाफ़ कर रहा है, एक बुजुर्ग भी तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के बाद उन बुजुर्गों के पास आया, कहने लगा, मैं जब से आया हूँ 12 साल में मैंने 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे किए, लेकिन मेरे दिल पर कोई ताला लगा हुआ है। मेरे दिल पर जुल्मत है, न इबादत को जी चाहता है न किसी और काम को। मालूम नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ। उन बुजुर्गों ने पूछा कि तूने किसी के दिल को दुख तो नहीं दिया। तब उसको माँ बाप की याद आई। कहने लगा, हाँ, मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहाँ आया और मैं समझा कि मेरे हजों और उम्रों से वो सारा गुनाह धुल जाएगा। उन्होंने फरमाया कि हज करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं, जाओ और अपने माँ बाप से पहले माफ़ी मांगो। चुनांचे टिकट बनवा कर ये अपने मुल्क वापस आया, अपने माँ बाप के गांव में गया। 12 साल गुजर चुके थे, कुछ पता नहीं था कि उसके माँ बाप
के साथ क्या गुजरी। उस बस्ती के किनारे पर एक आदमी मिला। उसने डरते डरते माँ बाप के बारे में पूछा। उसने उनको ना पहचाना और ये बताया कि उनका एक जवान बेटा था जो उनको छोड़कर बीवी के लिए चला गया। वो मियाँ बीवी बूढ़े थे, बहुत तंगी की जिंदगी उन्होंने गुजारी। बिलाखिर एक वक्त आया कि खाविंद भी फौत हो गया। अब माँ अकेली रह गई। वो बेचारी घर में अकेली, पड़ोसियों ने तरस खाया तो उन्होंने रोटी भेज दी, ना भेजी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, सब्र कर लिया। फिर उस औरत पर फालिज हो गया। अब सुना है कि चंद दिनों से उनकी आंखों की बिनाई चली गई है, बुढ़ापे की वजह से नाबीना हो चुकी हैं, फालिज ज़दा है। लेकिन पता नहीं कोई बात है कि अक्सर दुआएं मांगती रहती हैं और किसी को याद करती रहती हैं। ये अपने घर में गया, दरवाज़ा खोल कर देखा, माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सोच रहा था मैं माँ को इतना सताया, ये मुझे कहेगी दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके पाँव की आहट माँ ने सुनी तो पूछने लगी कौन है। उसने बताया मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटे तूने बहुत इंतज़ार करवाया, मैं उस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूँ कि आखिरी तमन्ना थी तुम आ जाते। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती, तुम्हारी आवाज़ तो सुन सकती हूँ। बेटे तुम्हारा चेहरा कहाँ है, मुझे हाथ लगाने दो। बेटे करीब आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ये माँ की मोहब्बत होती है कि इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो फकत बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है। तो जिस तरह माँ अपने बेटे के घर आ जाने पर खुश हो जाती है, सब कुछ माफ कर देती है, परवरदिगार आलम भी अपने बंदों के अपने दर पर आ जाने से खुश हो जाते हैं और बंदों की गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। आप एक मिसाल जरा सोचिए कि अगर वालिदैन का कोई बेटा हो जिसको उनका कोई बड़ा दुश्मन बरगला ले और माँ बाप से जुदा कर दे, और माँ बाप ये समझते हो कि हमारे बेटे का भी कसूर है, लेकिन बरगलाने वाला का ज्यादा कसूर है। वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह उसको वापस लाए। अगर बिलफर्ज किसी दिन माँ घर में अकेली है और वो बेटा अपने घर में वापस आ गया, दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि अम्मी दरवाज़ा खोलिए, आप क्या समझती हैं कि वो दरवाज़ा खोलेगी या बंद रखेगी? वो तो दुआएं मांगती थी कि मेरा बेटा दुश्मन के हाथों से छूटकर मेरे पास आ जाए। बिल्कुल इसी तरह शैतान अल्लाह ताला का दुश्मन, उसने अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला के बंदों को बरगला लिया, अल्लाह से गाफिल बना लिया। परवरदिगार आलम चाहते हैं कि दुश्मन से छूटकर मेरे पास आए, मैं उनके लिए दरवाजे खोल दूं। माँ तो फिर भी दरवाजे बंद रखती है, बेटे के आने पर खोलना पड़ता है। परवरदिगार का मामला तो ये है कि तौबा का दरवाज़ा बंद ही नहीं होता। हम रमज़ान अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो। ये ज़िंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। सब रिश्तों को अब छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। वाखिर दावाना।